Hello everybody, welcome to iExamB. I am Vidhika, Law Faculty at iExamB. Free mock test series में आज हम एविडेंस एक्ट के further questions discuss करेंगे and the topic today is on proof. Starting with the first question, the facts of which court will take judicial notice under Indian Evidence Act need to be proved, is optional to be proved, need not be proved, is better to be proved, none of the above. The correct answer here is C, need not be proved. This is given under section number 56 of Evidence Act. Fact judicially noticeable need not be proved. Coming to question number 2. Oral evidence must be direct, indirect, circumstantial, documented, all of the above. Correct answer here is A. Oral evidence हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए. ये आपका सेक्शन नंबर 60 में दिया हुआ है. It means किसी ने अगर कुछ देखा है वो आकर एविडेंस दे. ओरल एविडेंस उसी के मुंह से आना चाहिए जिसने खुद ऑब्जर्व किया हो, कुछ सुना हो, कुछ परसीव किया हो और किसी ओपिनियन को दे रहा है तो वही अपने ओपिनियन को आकर और वही उन ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन को आकर बताए. इस सेक्शन से हम ये भी डिराइव करते हैं कि ओरल एविडेंस में हियरसे एविडेंस इंक्लूडेड नहीं होता. दैट मीन्स हियरसे एविडेंस कैन नॉट बी गिवन इन एविडेंस बिकॉज ओरल एविडेंस शुड बी डायरेक्ट. हियरसे एविडेंस का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें. तो इस सेक्शन के थ्रू हम ये समझते हैं कि सुनी सुनाई बातें कोर्ट वैलिड नहीं मानता. ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. The details of an incident printed in newspaper is categorized as. The correct answer is C. Hearsay evidence. न्यूज़पेपर में बहुत कुछ छपा होता है बट जरूरी नहीं है कि उसको हम इनडायरेक्ट एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोले. न्यूज़ रिपोर्टर्स तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को भी डे टू डे टाइम पे रिपोर्ट करते हैं, पार्लियामेंट्री डिस्कशंस को भी रिपोर्ट करते हैं. सो दैट ऑल कम्स अंडर हियरसे एविडेंस. वो डॉक्यूमेंट्री, इनडायरेक्ट, ओरल या कोई अदर टाइप का एविडेंस नहीं होता, वो हियरसे एविडेंस होता है. Question number 4. Which of the following is primary evidence? Copies made from original, document produced for the inspection of court, certified copies of a document, photostat copies of a document, all are primary evidence. Correct answer here is B. Document produced for the inspection of court. This is given under section number 62 of Evidence Act. Primary evidence means the document itself is produced for the inspection of court. Question number 5. Court can presume the legality of digital signature on electronic record. So here we are talking about electronic record and its related presumptions when it is. Correct answer here is 5 years old. Section 90A of Evidence Act talks about this. Presumption as to electronic records 5 years old. Where any electronic record which is purporting or proved to be 5 years old is produced from any custody which the court in the particular case considers proper, the court may presume that the electronic signature which purports to be the electronic signature of any particular person was so affixed by him or any person authorized by him in this behalf. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 साल पुराना है तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को उस पर करेक्ट माना जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. A agrees to sell a horse to B for ₹1000 or ₹500. तो डॉक्यूमेंट में क्लियर ही नहीं है कि हॉर्स का क्या अमाउंट रहेगा. To show which price was to be given under Indian Evidence Act, can the evidence be given? The correct answer is evidence cannot be given. जब ambiguity होती है और ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी क्या मेंशन है, अगर कोई चीज नहीं मेंशन है या डॉक्यूमेंट साइलेंट है किसी चीज से रिलेटेड, तब एडिशनल एविडेंस दिया जा सकता है. बट यहाँ पर तो क्लियरली एम्बिग्यूटी है. लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में दैट द हॉर्स इज सोल्ड फॉर आइदर ₹1000 और 1500. तो इस केस में एविडेंस कैन नॉट बी गिवन. ये आपका सेक्शन नंबर 93 ऑफ एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है. एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट. क्वेश्चन नंबर 7. इन अ क्रिमिनल केस द प्राइमरी बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव अ फैक्ट इज अपॉन. द करेक्ट आंसर हियर इज बी, प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन को एस्टैब्लिश करना होता है कि एक्यूज ने क्राइम किया है. सो प्राइमरी बर्डन ऑफ प्रूफ की ऑफेंस हुआ है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है. अगर प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंस दे दिए और उससे कोर्ट को लगता है कि हाँ एक्यूज ने क्राइम किया है, उसके बाद एक्यूज अपना डिफेंस देता है. एंड वन मोर थिंग, वी ऑलवेज से क्रिमिनल ऑफेंस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी. इसमें जो दूसरी पार्टी होती है, एक तो होता है एक्यूज्ड और जो विक्टिम होता है उसको हमेशा स्टेट रिप्रेजेंट करता है. सो दैट्स व्हाई हियर वी आर सेइंग द प्राइमरी बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन हु इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट. Question number 8. To prove the case of alibi, the burden of proof lies on. The correct answer is A, accused. Defense of alibi क्या है? The person is saying
कि मैं उस जगह पर नहीं था जहां पर क्राइम हुआ था, आई वॉज एट सम अदर प्लेस। अगर आपने दृश्यम मूवी देखी हो तो वो कंप्लीटली डिफेंस ऑफ एलिबाई पे बेस्ड है। So let's say the murder happened in Delhi and the accused is saying I was not even in Delhi, I was in Chennai. तो ये नॉलेज किसके पास है? ये तो एक्यूज के पास ही है। सो इन ऑर्डर टू प्रूव द केस ऑफ एलिबाई द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द एक्यूज। ये आपका सेक्शन नंबर 106 ऑफ एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। तो ये तो एक्यूज की नॉलेज में है ना कि वो कहाँ पे था, तो उसको प्रूफ करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूज पर ही लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी डेड इफ ही रिमेन्ड अनहर्ड फॉर। तो किसी को कब डेड प्रिज्यूम किया जा सकता है? जब जो लोग उससे नेचुरली सुन सकते हैं, उसके रिलेटिव्स, उसके फैमिली मेंबर्स, उन्होंने 7 साल से उससे कुछ ना सुना हो। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 108 ऑफ एविडेंस एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years। तो अगर किसी को 7 साल से किसी ने सुना ही नहीं है तो ये एज्यूम किया जाता है कि उस पर्सन की डेथ हो गई है। इसको सिविल डेथ बोलते हैं। अब ये बोला गया है कि अगर किसी को प्रूव करना है कि वो पर्सन जिंदा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे आ जाएगा जो बोल रहा है कि वो बंदा जिंदा है। सो दैट इज व्हाट इज सेक्शन नंबर 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कि एक पर्सन को डेड माना जाएगा अगर उससे किसी ने 7 साल तक सुना नहीं है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी इज कॉल्ड। तो जब ऑपोजिट पार्टी विटनेस को एग्जामिन करती है उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एग्जामिनेशन इन चीफ होता है जब जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है वो खुद क्वेश्चंस पूछ रही है। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जब एडवर्स पार्टी उससे क्वेश्चंस पूछ रही है, उसको एग्जामिन कर रही है। री एग्जामिनेशन होता है जब सेम पार्टी अपने ही विटनेस से दोबारा क्वेश्चंस पूछ रही हो सब्सिक्वेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई सर्टेन पॉइंट्स, या फिर कुछ न्यू डिस्कवरीज हुई हैं तो उन पे फर्दर एग्जामिनेशन करने के लिए। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। वी हैव टेकन अप क्वेश्चंस फ्रॉम इंपॉर्टेंट सेक्शंस। एक और वीडियो हम लेकर आएंगे एविडेंस एक्ट पे from remaining sections of the part on proof. I hope you are finding this video useful. For any queries or any doubts, you can write down in the comment box. You can also reach out to us on this number. iExamB helps you prepare 50% faster with a crisp and concise content and with relevant exam related questions. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.